Okay, hello students. So the next lecture in image processing, it involves the main fundamental steps in image processing, in the processing, how the image are being processed and what are the steps being involved. Okay, so सबसे पहले तो image processing, as we know, it is a method to convert an image into digital form and then perform some operations on it. अब कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसका मेन मोटिव क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट एन एनहांस्ड इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. मतलब या तो हम उस इमेज में कुछ इन्हांसमेंट करें, कुछ भी बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द इमेज, और या फिर हम उससे कुछ भी मीनिंगफुल या फिर जो भी हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करें. ओके, नाउ सबसे पहले द पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. तो जो पर्पस होता है ना इमेज प्रोसेसिंग को, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. और वो 5 ग्रुप्स क्या क्या है? सबसे पहला विजुअलाइजेशन, मतलब ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल. अब देखो कई बार इमेज में क्या होता है ना कि वी हैव मेनी फीचर्स बट some of the features or some of the abstracts are not quite visible. तो हम उन पे या तो मतलब होते हैं इमेज में but they are not as much visible. Maybe they are in the background, मतलब इमेज के बैकग्राउंड में है, not in the foreground. So we are not quite able to realize it, visualize it. तो properly visualization के लिए there are many operations related to that. तो एक विजुअलाइजेशन. नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या होता है? इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन. नाउ द मेन एम ऑफ इट is to create a better image. Okay, मतलब in short term, short words ऐसे समझो कि image को enhance करना, अच्छा बनाना. There are many ways, we will read on later, but these are the main purposes. Okay, now image retrieval. Now this seeks for the image of interest. मतलब हमारे इमेज में हमारे मतलब जो भी हमें इमेज गिवन है उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर फीचर चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है जो हमें इमेज का, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है. ओके, नॉट द कंप्लीट इमेज बट सम पार्ट ऑफ द इमेज. ओके ओके, तो दैट वाज अबाउट द इमेज रिट्रीवल. नाउ द नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ पैटर्न. नाउ देयर आर लाइक इट इन्वॉल्व्स मेनी actually it basically refers to the shapes in an object, shapes in an image which involves various objects. Like यहाँ पे measures various objects in an image. Okay, एक image में बहुत सारे shapes, features होते हैं. Shape exactly mathematical shape like square, triangle. इनसे related जो भी चीजें होती है ना, we will get to know more about this in while studying the morphological image processing. Okay, now the next main purpose is image recognition. Now what it does, it distinguishes the object in an image. मतलब it differentiates. There are various objects in an image, right? किसी भी image में बहुत सारी चीजें होती हैं, and main image recognition में what we do is we differentiate. हम जो हमें चाहिए ना particularly, उसको हम कैसे बाकी चीजों से differentiate कर सकते हैं. Image detection may be under one of the image recognition. There are various other things, right? We will quite discuss some of the steps, main steps involving these purposes. तो ये तो पर्पस था इमेज प्रोसेसिंग को डिवाइड करने का. मेनली मतलब इमेज प्रोसेसिंग का मेन पर्पस क्या है, तो दैट वाज हियर. एंड नाउ द फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. नाउ दिस इज quite an important question which is being repeatedly asked in your paper, and over the years not even the question has been molded or anything, it has been asked directly कि steps क्या है और applications क्या है. Okay, then may vary some definitions, कुछ एक और आधे तो questions add कर देना, but yes, this question is being repeatedly asked. तो इसमें बस steps हैं and we have in total 9-10 steps. तो उसमें we will go on like image acquisition, image enhancement, restoration, then vignette and multi-resolution, color image processing. Actually, there is I have made a block kind of images. Yes, this is it. Here, as you can see, this is a knowledge base, right? Knowledge base कुछ नहीं है, मतलब this is just a system जो मतलब लैपटॉप बोल लो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और फोन और any system which will actually process these images. It is a knowledge base. मतलब जिसके पास भी हम कोई information स्टोर करके रखें, जो प्रोसेस कर पाए ना चीजों को, that is knowledge base in simple terms. Okay, now the main steps क्या क्या है, ये है image acquisition,
image enhancement, image restoration, and color image processing, wavelets and multi-resolution processing, then image compression, then we have the morphological image processing, then we have image segmentation, then image representation and description, and finally we have the object recognition. Okay, now देखो अब ये जो सारे steps है ना, these may not, मतलब it is not necessary कि they will always occur in this order only. इसमें स्टेप्स में ऐसा बिल्कुल भी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है. इमेज एनहांसमेंट के बाद यू कैन ऑलवेज गो टू मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग एंड देन यू कैन गो ऑन टू कलर इमेज प्रोसेसिंग. देखो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है कि भाई इमेज एक्विजिशन के बाद एनहांसमेंट ही होना चाहिए, एनहांसमेंट के बाद रिस्टोरेशन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये तो क्या है कि हम किस किस तरीके से इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, राइट. तो दीज आर जस्ट द स्टेप्स बीइंग इन्वॉल्व्ड, नॉट नेसेसरली इन एनी ऑर्डर. ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है इसका, और ना ही ये जरूरी है कि 10 के 10 स्टेप होने ही चाहिए. मतलब दीज आर जस्ट सम ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यू कैन से जो होते हैं इमेज के साथ. हम क्या क्या करते हैं इमेज में, क्या ऑपरेशंस यूज होते हैं, दीज आर दोज व्हिच हैव बीन डिवाइडेड. So we'll start with image acquisition. So what is image acquisition? Now we know image acquisition मतलब होता है image. This is the first step or the process of fundamental step of digital image processing. Okay, acquisition मतलब क्या है कि acquire करना, मतलब image जो भी available है, पहले देखो process करने के लिए हमें सबसे पहले image चाहिए भी, तो we need to acquire an image, right? मतलब image को लाना. तो इमेज कहाँ से लाते हैं? इमेज एक्विजिशन के लिए वी कैन यूज फोन कैमरा और कैमरा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मतलब जिसमें भी हम इमेज एक्वायर कर पाए. इन सिंपल टर्म्स बस हमें इमेज को लाना है, सबसे पहले डिजिटल इमेज बनाना है, राइट. तो दिस इज द स्टेप विच इन्वॉल्व्स मतलब इमेज एक्विजिशन, जहां इमेज को एक्वायर कर रहे हैं. तो एक्वायर किससे करते हैं? कैमरा होगा, सेंसर ऑफ कोर्स. तो इट इन्वॉल्व्स लाइक डिजिटल कैमराज या फिर कोई भी इमेजिंग डिवाइसेस जिनमें सेंसर के थ्रू वी एक्वायर द इमेज. तो इसके अंदर ना बेसिकली इमेज एक्वाजिशन के अंदर विल स्टडी कि हाउ द इमेजेस आर बीइंग कैप्चर्ड यूजिंग द सेंसर्स. तो जिसमें हम वी विल स्टडी मेनली 3 प्रिंसिपल सेंसर अरेंजमेंट्स है, which is single imaging sensor, then the line sensor and the array sensor. See, image acquisition, there is a topic and we will study in more details about that in that topic itself. So the next step is image enhancement. Okay, अब देखो enhancement मतलब क्या है? Basically image enhancement क्या है? It is among the simplest and the most appealing area of digital image processing. मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा मतलब बहुत यूज्ड एप्लीकेशन है. क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड एनहांसमेंट इज टू ब्रिंग आउट डिटेल दैट इज ऑब्सक्योर्ड और सिंपली टू हाईलाइट सर्टेन फीचर ऑफ इंटरेस्ट इन इमेज, जैसे कि ब्राइटनेस चेंज करना, कंट्रास्ट बढ़ाना, ये सारी चीजें. मतलब जैसे कुछ भी जो हमें अच्छा ना लग रहा हो, जैसे हम अपने मेनली पिक्चर्स में क्या करते हैं ना, ऐसा ही कि भाई थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा इमेज का लाइटनेस वाइटनेस बढ़ा दो. तो ये सारी चीजें क्या है, इमेज को एनहांस कर रहे हैं. ओके, just like I said कि aim of the image enhancement is to improve the interpretability or maybe the perception of information in image for human viewers. मतलब human को देखने के लिए वो better लगना चाहिए, ठीक है. Now ये जो image enhancement technique है ना, it is further divided into 2 broad categories. एक तो होता है spatial domain method, जिसमें हम directly image का pixels पर काम करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है frequency domain method, जिसमें हम Fourier transform यूज करते हैं image का. ये frequency related है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि देयर इज नो जनरल थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट इज गुड इमेज एनहांसमेंट. ओके, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन परसेप्शन, इफ इट लुक गुड इट इज गुड. ऑफ कोर्स ना, अब देखो अब मुझे जो अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है कि बाकियों को भी अच्छा लगे. तो बस यही मेन क्राइटेरिया है इमेज एनहांसमेंट का और इमेज रिस्टोरेशन का. दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू. ओके, इमेज रिस्टोरेशन भी अच्छा ही करता है इमेज को. इसका देखो पर्पस क्या लिखा है, द पर्पस इज टू कंपनसेट फॉर और अंडू डिफेक्ट्स व्हिच डिग्रेड एन इमेज. यानी जो इमेज को खराब करता है ना, उसको अंडू करना, यानी अच्छा बनाना. इन टर्म्स हम अच्छा ही तो कर रहे हैं. जैसे इन केसेस लाइक मोशन ब्लर, इट इज पॉसिबल टू कम अप विद अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल ब्लरिंग फंक्शन, है ना. हम मतलब क्या करेंगे कि ब्लरिंग फंक्शन हटा देंगे तो मे बी वो अनडू कर दे तो ब्लर हट जाएगा.
मतलब मेनली क्या कर रहे हैं, इमेज को अच्छा बना रहे हैं। तो लेकिन बट इन इमेज रिस्टोरेशन वी हैव गॉट सम फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण वी हैव गॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन इमेज एनहांसमेंट में वी हैव नो सच वैल्यू, बिकॉज कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए that is a subjective operation or image restoration is an objective operation. Okay, now the next step is color image processing. Now see, color image processing is a very vast subject in its own, अपने आप में बहुत बड़ा vast topic है, and it involves all the colors related, मतलब जितने भी colors से related हम कैसे चीजों को define करते हैं, कैसे अलग करता है image को color, और mainly जो मेरा color spectrum है, वैसे तो बहुत सारे spectrum में image processing use होता है, UV spectrum में, gamma में, but the most इसका जो application involve UV ray, मतलब sorry visible spectrum, और visible spectrum is the one which involves colors from the Vibgyor, मतलब violet से red, and the wavelength involved with this is 400 nanometers to 700 nanometers जो visible spectrum होता है. Okay, so visible spectrum that is the color image processing. Okay, now color image processing. इसके बाद next we have, इससे जैसे टेबल में था कि wavelet and compression and about all the rest topic we will be getting to know about in I will tell you about these the rest of the steps in the next lecture. Okay.